Good morning, students. Today we will discuss absolute value of a rational number. First of all, we will try to understand the meaning of absolute value. Okay. Suppose we have two numbers -2 and 2. These are the two numbers. One with positive sign and another with negative sign. Okay. Now the sign for absolute is this one. This is the sign for absolute value. The absolute value of -2 is equal to 2 and absolute value of 2 is also 2. What is the meaning of this? When we find absolute value of any number, it may be positive, it may be negative. We just see only the numerical value, We don't see positive or negative sign. Or you can say we simply take the numerical value. We don't take minus or positive sign. This is called absolute value. Or sometimes the students say the absolute value of any negative or positive number is always positive. Okay. And what is the absolute value of 0? Absolute value of 0 is 0. It is neither positive nor negative. So this is the simple concept. Now we will do the worksheet number 4. Very simple. Find the absolute value of the following rational number. What is the absolute value of 1 upon -5? It is 1 upon 5. We don't take negative sign. What is the absolute value of 7 by 9? It is 7 upon 9. What is the absolute value of 0 upon -4? It is simply 0, because 0 upon something is 0. What is the absolute value of -3 upon -2? It is 3 by 2. And we simply write it like this. Absolute value of 1 upon -5 is equal to 1 upon 5. Absolute value of 7 upon 9 is 7 upon 9. Okay. Absolute value of 0 upon -4 is 0. Okay. And absolute value of -3 upon -2 is 3 upon 2. Now next question is compare the absolute value of rational number in the following pairs. We have to compare these absolute value of these. Okay. Or we can say we have to find whether these are greater or less than from each other. Okay. Let us do the first one. Now we have to compare the absolute value of these two. So what is the absolute value of this? We remove the negative sign. It will become 3 upon 7. It is also become 3 upon 7. And both, you can see both are equal. So these two are equal. Now we have to compare the absolute value of these two. So we will take the absolute value of these two. We have to compare these two. So what is the absolute value of -5 by 7? It is 5 by 7. And absolute value of 4 by 3 is 4 by 3. Now we have to check whether which one is greater or which one is less. तो इसके लिए बेटा आपको याद होगा, we will apply cross multiply rule. You remember this thing? 5 3s are 15 and 7 4s are 28. Okay. आपने लोअर क्लास में भी किया हुआ है ये कि कैसे कंपेयर किया जाता है. हम क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं? 5 3s are 15, 7 4s are 28. Now we will check which is greater, 28 greater or 15 greater. You can simply see 28 is greater than 15. 28 is greater than 15. So it means this is greater than this one. So we can write here absolute value of 4 by 3 is greater than 15 stands for this one. My absolute value of -5 by 7. Similarly, you can do this one. Now question number 3. Find all rational number whose absolute value is 2 by 5 and 0 and 3 by 4.
दिस इज सिंपल. 2/5 can be the absolute value of minus 2/5 and simply 2/5, and 0 is the absolute value of 0, and 3/4 can be the absolute value of minus 3/4 as well as 3/4. So this is the simple one. Now our next concept is representation of rational number on a number line. This is very good concept. How to represent rational number on a number line. Let us do the question number 2. Okay, we have to represent 4/5, minus 8/3, 5/2, minus 7/3 on the number line. Okay, for this, first of all we will draw a number line. You know the number line. आपको पता है लोअर क्लास में आपने नंबर लाइन ड्रॉ की हुई. कैसे करते हैं? ये 0 लिया हमने और यहाँ पे हम ये लेते हैं 1 2 3 4. अरे यहाँ पे नेगेटिव आते हैं, आपको पता ही होगा. -1, -2, -3, -4. Okay, and this number line can be produced indefinitely both side. Okay, first of all I am doing the simpler one, 5/2. Okay, now we want to represent 5/2 on the number line. अब आपने एक बात बड़े ध्यान सुनना है. आपने जब भी कोई रैशनल नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, आपने डिनोमिनेटर पे कंसंट्रेट करना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी इन द डिनोमिनेटर. अब आपने क्या करना है, ये जो नंबर लाइन पे नंबर्स हैं इनमें हर एक पार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना. देखो यहाँ से यहाँ तक कितना 1 पार्ट है ना. वी विल डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स. अगर यहाँ पर 3 होता तो हम इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते. अगर 4 होता तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हर एक को. अब जैसे यहाँ पर 2 है, देन वी विल डिवाइड ईच पार्ट इनटू 2 इक्वल पार्ट. ओके, जैसे यहाँ कर दिया हमने. देखो 1 2. सिमिलरली 1 और 2 को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे. 1 2. इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, एवरी नंबर. अब आपने क्या करना, जैसे 5/2 है, काउंट फ्रॉम हेयर 0 1 2 3 4 5. So this number is 5/2. This number is 5/2. ये नंबर 5/2 हो जाएगा. आप देख भी सकते हैं 5/2 का मतलब क्या है, 2.5. 5 का हाफ 2.5. और आपको देख लो 2 और 3, ये क्या हुआ 2.5 तो है. और सपोज करो हम चाहते हैं 5/2 के बाद हम चाहते हैं हम 6/2 रिप्रेजेंट करना चाहते हैं. 6/2. दिस इज वेरी गुड. इससे आपको क्लियर भी हो जाएगा. हम क्या करना चाहते हैं नंबर लाइन पे 6/2. 6/2 तो देखो 0 1 2 3 4 5 6. दिस विल बी 6/2. और 6/2 तो आपको पता ही क्या होता है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. तो देखो 3 कम आ गया, 3 आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे. सो दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट एनी रैशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन. ओके, अगर कोई बोल दे आपको -1/2 बोल दे, -1/2, तब आपने इधर को चलना है नेगेटिव साइड. ओके, -1/2, 0 and 1. So this is -1/2. अगर आपको कोई बोल दे -3/2, -3/2, तो क्या करोगे, यहाँ से काउंटिंग शुरू करो. नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड में 0 1 2 3. So this is -3/2. Okay, this is -3/2. ओके, आप देख सकते हो 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5. 3/2 का मतलब क्या हुआ -1.5. -1.5 कहाँ होगा 1 और 2 के बीच में. तो आप देख सकते हो -1 और -2 के बीच में -3/2. ओके, सो दिस इज द वे हाउ अ रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन. तो यू कैन सी, आप सारे क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हैं. ये भी
जैसे 4/5 है, तो अब आपने हर एक पार्ट को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। यहाँ पर हर एक पार्ट को 3 इक्वल पार्ट में, यहाँ पर 2 इक्वल पार्ट में, यहाँ पर 3 इक्वल। ये थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन आर सेम। सिर्फ यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो जैसे मैं ये कर लेता हूँ आपके लिए, 4/5 कर लेता हूँ एक ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। सपोज नाउ यू वांट टू ड्रॉ 4/5 ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले हमने नंबर लाइन ड्रॉ करी। अच्छा एक बात बताऊँ कि बेटा जैसे ये गैप है ना, ये आप अपनी मर्जी से, अपनी कन्वीनियंट से इक्वल गैप रख सकते हो, जो मर्जी, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप ये जो गैप है 0 और 1 और 1 और 2 के बीच में जो मर्जी रख सकते हैं, और नंबर भी कहीं तक ले जा सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही नंबर लिए हैं, क्योंकि हम ज़्यादा क्यों लें, हमें ज़्यादा जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा काम करना होगा। मुझे 4/5 करना है, तो हम अगर हमारा इतने से काम चल जाता है तो हमें ज़्यादा नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने क्या बताया था, आई वॉन्ट टू ड्रॉ 4/5 ऑन द नंबर लाइन। तो मैंने फर्स्ट स्टेप बताया था, कंसंट्रेट ऑन डिनोमिनेटर, देयर इज ए 5 इन द डिनोमिनेटर, ओके। तो हमें इन सबको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5। अगर आपने 5 इक्वल पार्ट में करना है तो 4 कट मारने पड़ते हैं। देखो 1 2 के को 5 इक्वल पार्ट में 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट हो गए। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4। So this is how we divide the number line into equal parts, okay। तो क्या मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जो नंबर डिनोमिनेटर में है उस नंबर के इक्वल नंबर लाइन पे जो हमारे ये हैं, इनको आपने इक्वल 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। 0 और 1 को 5 इक्वल पार्ट में, 1 और 2 के बीच के गैप को 5 इक्वल पार्ट में, इसको 5 इक्वल पार्ट में, इसको 5 इक्वल पार्ट। नाउ हमने 4/5 करना है, तो पॉजिटिव नंबर है तो आपने 0 से काउंटिंग शुरू कर देनी। कहाँ तक काउंटिंग करनी है? 4 तक। जो नंबर न्यूमरेटर में है, जो नंबर न्यूमरेटर में है उसके इक्वल नंबर आपने काउंट करने हैं। 0 1 2 3 4। तो ये नंबर हो गया आपका 4/5, ओके। अगर आपको कोई बोल दे बाई चांस 5/5, तो आपने 5 काउंटिंग करनी, 0 1 2 3 4 5। और देखो 5/5 क्या होता है? 5/5 क्या होता है? 1। तो आ गए हम 1 पे। अगर कोई बोलते आपको -6/5, ओके, -6/5, तो अब ये नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव है तो लेफ्ट को मूव करेंगे 0 से। यहां से काउंटिंग करो, कहां तक? 6 तक काउंटिंग करनी है आपने। 0 1 2 3 4 5 6। तो ये नंबर, ये वाला नंबर हो जाएगा हमारा -6/5, पर हमसे सिर्फ 4/5 बोला गया। सो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ नंबर, रैशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। इन थर्ड क्वेश्चन को भी ऐसे ही करना है। सिर्फ यहाँ पर क्या है, जैसे -3 है तो आपको माइनस को ऊपर शिफ्ट कर देना, -2/3, तो ये नेगेटिव में चला जाएगा। 3/4, ये सारे क्वेश्चन सेम है। सो विद दिस योर वर्कशीट नंबर 5 is over, and true or false you can do yourself on a number line. All numbers to the right of 0 are positive. इसका क्या मतलब हुआ कि जितने भी नंबर 0 के राइट में होते हैं, टू द राइट ऑफ 0 आर पॉजिटिव। ये 0 है, ये राइट साइड, ये राइट, दिस इज राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड। तो 0 के राइट में जितने भी नंबर होंगे क्या होंगे? पॉजिटिव। उधर को क्या होंगे? नेगेटिव। तो फर्स्ट क्या है? ट्रू। रैशनल नंबर -7/-19 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। नो, दिस इज फॉल्स। वाई? क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो गए। ये क्या हो गया? 7/19 क्या हो गया? पॉजिटिव। तो ये लेफ्ट तो हो नहीं सकता, राइट होगा। नेक्स्ट है, ऑन ए नंबर लाइन द नंबर बिकम प्रोग्रेसिवली लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम 0। कि जैसे हम 0 से दूर जाएंगे तो क्या होगा? नंबर क्या होते हैं? इंक्रीज होते जाएंगे, बढ़ते, लार्जर होते जाएंगे। तो इधर को तो ठीक है, जैसे हम वो करें 1 2 ये बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है? जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, -1 -2 नंबर क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं। आपको पता ही होगा, नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन अदर नेगेटिव नंबर इफ
it is greater than the other number. Okay, न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी 2 की इससे बड़ी है, लेकिन ये नंबर -2 -1 से छोटा होगा, तो लेफ्ट साइड में ये बात फॉल्स है, तो ये इसलिए ये क्या हो जाएगा, नंबर 3 क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. ना फोर्थ वन, रैशनल नंबर 2/3 and -2/3 are at equal distance from 0. Yes, this is true. Why it is true? क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है, सिंपल है, -1 और 1 दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, इधर को भी दोनों का डिस्टेंस इक्वल है. इसी तरह इसका डिस्टेंस भी क्या होगा, एक दोनों नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू तो दोनों की सेम है, सो 0 से दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा. दिस इज ट्रू. ऑन ए नंबर लाइन लेफ्ट टू अ गिवन नंबर इज ग्रेटर, तो ये भी फॉल्स होगा. इसने कहा कि नंबर जो गिवन नंबर के लेफ्ट में वो हमेशा ग्रेटर होता है. अब 1 2 के लेफ्ट में है, लेकिन 1 तो 2 से छोटा है, ठीक है. इसने कहा नंबर लाइंग टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर इज ग्रेटर. नो, 1 is smaller than 2. So this is false. So with this your worksheet 5 is over. So homework for you, do worksheet number 4 and 5. Okay, thank you very much.